السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ایک بہت زبردست آڈیو آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں۔ اس آڈیو کے اندر دیوبندی خبیث کی منافقت کو آپ کے سامنے کھل کر رکھ دیا۔ دیوبندی نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا اور اپنے مولویوں کے لیے علم غیب مانتا ہے، اور یہ دیوبندی اتنا بڑا جاہل ہے، یہ مطلق لفظ کا بھی ترجمہ اور اس کے مفہوم سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور بلا وجہ ہٹ دھرمی کر کے اعلیٰ حضرت کی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر جگہ رسوائی ہوئی، بار بار یہ بدتمیزی پر اتر آیا، پھر بھی میں صبر کے ساتھ بات مکمل کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ آپ تک حق پہنچانا میرا کام ہے، عوام الناس تاکہ حق سمجھے۔ اس وجہ سے صبر کے ساتھ میں نے بات مکمل کرنے کی کوشش کیا، اور ہر بات میں اس دیوبندی کو میں نے لاجواب کر دیا۔ آخر فون کٹ کر کے بھاگنے کے بعد اس کے سارے اعتراض کا میں اچھے انداز میں، بالکل بہترین انداز میں آپ کو جواب دیا۔ ہر انسان کو حق اور ناحق بالکل کھل کر سمجھ میں آئے گی۔ اس آڈیو کو مکمل آخر تک سنیں اور اپنے سارے دوست احباب رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ محترم حضرات، ہمارے ویڈیو کے اندر جا کر آپ یوٹیوب جب دیکھتے ہیں تبھی ہر ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ ضرور کریں، اور دیوبندیوں کے کامنٹ میں جو بھی بیہودہ اعتراضات ہیں، دیوبندی لوگ کامنٹ کے اندر جو بھی بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراض کا جواب دینا آپ کا کام ہے۔ سارا کام میں اکیلا کروں، آپ کچھ نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، جو بھی ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ کامنٹ میں جا کر روزانہ دیوبندیوں کے کامنٹ کا جواب دے۔ دیوبندیوں کے بہت سارے غلط کامنٹ بار بار دیکھتا ہوں، ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور بہت دل دکھتا ہے، لیکن ہمارے کوئی سنی بھائی جواب دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، آپ ضرور دیوبندیوں کے کامنٹ کا، بدعقیدوں کے کامنٹ کا بھی جواب دے، اور ہر ویڈیو کو لائک کرے، شیئر بھی ضرور کرے۔ آپ بات کو آگے بڑھائیں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے، تبھی لوگ گمراہی سے بچیں گے، سنیت کا بولو بالا ہوگا۔ میرے بھائی، صرف ہمارا اکیلا کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر بدعقیدہ عوام بھی بیدار ہے، لیکن ہمارے سنی سوئے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم کب تک اس طرح کام کرتے رہیں گے، کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ میرے بھائی، آپ بھی بیداری کا ثبوت دے، دیوبندیوں کے ہر اعتراض کا منہ توڑ جواب دے۔ سامعین حضرات، ہمارے مالی امداد بھی کرے۔ جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے، میرا نام جلال الدین چشتی ہے، میرے جو گوگل پے نمبر ہے وہ دیا ہوا ہے۔ آپ ہمارے مدرسے کے لیے، دینی کام کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے ہر طرح سے امداد کرے۔ جو حضرات ہر مہینہ دیتے ہیں، ان حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 3 مہینے سے تقریباً میں جب ملیشیا گیا تھا، اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے امداد نہیں کیا، یعنی جو ہر مہینہ 100 روپیہ، 500 روپیہ، کوئی 1000 روپیہ دیتے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے 2-3 مہینے سے دینا بند کیا۔ ان سبھی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، وہ حضرات اپنا امداد جاری رکھے۔ ہر مہینہ تقریباً 12 سے 13 ہزار روپیہ ہر مہینہ میرا خرچہ ہو رہا ہے۔ مدرسے میں حافظ صاحب کا تنخواہ دے رہا ہوں، کرایہ پہ مدرسہ چلا رہا ہوں، اور رمضان میں اور رمضان سے پہلے جتنے پیسہ میرے پاس آ چکے تھے، میں زمین کا پیسہ مکمل ادا کر دیا ہوں۔ اب زمین کا پیسہ مکمل ادا کیا جا چکا ہے، اب وہاں تعمیری کام باقی ہے، اور جب تک تعمیری کام نہ ہو تب تک میں کرایہ پہ مدرسہ چلا رہا ہوں آندھرا پردیش مدن پلی میں۔ اس مدرسہ کا کرایہ، حضرت کا تنخواہ، اور میرے بھی جہاں بھی دینی تقاضے پہ میں جاتا ہوں، آنے جانے کا اور رہنے کا اور دیگر تمام اخراجات آپ کی وجہ سے، آپ کی امداد سے چلتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام آپ سب کی ذمہ داری ہے، اس کا تعاون کرنا بھی آپ کا سب کا کام ہے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات ابھی تک ہماری امداد نہیں کیا، جتنا ہو سکے ہمارے گوگل پے نمبر پہ مدد کرے۔ اور جو حضرات ہر مہینہ دیتے ہیں، وہ حضرات بھی تقریباً 3-4 مہینے سے نہیں دے رہے۔ رمضان کے بعد سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک جو ہر مہینہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آڈیو سنتے ہی ضرور امداد کرے، جتنا ہو سکے ہماری امداد کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ مکمل آڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ کون سی عبارت ملتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، جب غیب اگر مطلق کہا جاتا ہے تو وہ علم ذاتی ہوتا ہے، نہ ایک کہ منٹ حد ہے۔ سن لیں، میری بات سن لیں۔ جو آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے، پہلے واٹس ایپ سے اس کا دلیل بھیجیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ پھر آپ بھی توبہ کریں گے پھر؟ جی، پہلے آپ بھیجے تو میں دیکھوں کون صحیح ہے کون غلط۔ نہیں، وہ آخری میں تم لوگ جو ہے نا
जो है ना तावील कर देते, आला हजरत को बचाने की कोशिश करते हैं आप लोग। ये नहीं देखे नहीं नहीं सुने पहले बचाते आप, सुनिए। नहीं 100% मालूम, आप बचाते सुने आला हजरत पहले। को, नहीं बचाएंगे आप आला हजरत को। जनाब आरिफ भाई आप चुप हो जाइए। आप बात कर रहे हैं ना इमरान साहब, देखिए 2-2 मिनट बात होगी, आप 2 मिनट बोलेंगे, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। इसी तरह आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अपनी 2 मिनट अपनी बात रखूंगा। दोपहर को आपने, अभी 2 मिनट मेरी बात शुरू हो रही है, दोपहर को आपने बोला कि आला हजरत ने किताब में लिखा है कि सिर्फ जाती ही इल्म गैब होता है, अताई इल्म गैब नहीं होता। तो ये बात आपने कहा और स्कैन भेजता हूँ बोल के बोले थे, और दोपहर से अभी तक आपने भेजा नहीं। बार बार मैं मुतालबा कर रहा हूँ, भेज नहीं पा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पे आप बोल रहे तौबा करेंगे करेंगे बोलकर, और हमको 100% गारंटी है आला हजरत के बारे में आप कोई गलत बात साबित कर ही नहीं सकते, तो फिर हम कैसे आला तौबा करेंगे? मैं खुद पढ़ सच्चाई लिया। सामने पेश अच्छा, करना आपकी आपका होगी 2 काम है। मिनट, आपकी 2 मिनट होगी। 2 मिनट हुआ नहीं था, फिर भी मैं अपनी बात मुकम्मल कर लिया, बोलिए। हाँ तो देखिए सुनिए, मैं अभी देखा आला हजरत का तर्जुमा, आला हजरत ने खुद लिखा है, अपने हाथों से लिखा है या उनके मुरीदीन ने लिखा है। आला हजरत की खुद किताब में अल मखसूसात में लिखा है, जो चीज़ जब कोई उसकी तरफ मंसूब हो, कोई बात मुतलक गैब बोला जाता है, यानी कि मुतलक गैब यानी कि अगर किसी गैब की तरफ कोई भी चीज़ मंसूब हो तो वो इल्म ज़ाती होता है, यानी कि जब गैब की तरफ कोई चीज़ मंसूब हो, यानी कि गैब अगर बोल रहे आप, मतलब गैब का इल्म अल्लाह के नबी को अगर बोल रहे था तो गोया कि आला हज़रत फरमा रहे ये इल्म ज़ाती होता है। अगर गैब मुतलक जब बोला जाता है तो वो इल्म ज़ाती होता है, ठीक है ना। यानी कि पता चला कि जो गैब मुतलक बोला जाता है तो वो इल्म ज़ाती होता है, वक्त बता रहे, समझ में मेरी बात हो गई आपकी? हाँ हो गई मेरी बात। तो आप क्यों आप 2 मिनट हो गई करके पूछते हैं? पूछने की भी जरूरत नहीं है, मेरी बात मुकम्मल होगी, मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा। इसी तरह आपने अभी बात मुकम्मल किया, आप चुप हुए, आपकी बात हो गई तो मैं बात शुरू किया। आप जल्दबाजी करने की जरूरत, इत्मीनान से बात होगी। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे, हाँ देवबंदी एक देवबंदी था बहुत अच्छी तरह बात किया बोलेंगे। अब इसी तरह जल्दबाजी करेंगे तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी बिल्कुल इत्मीनान से सही है, बात मगर करूंगा। बरेलिया के अंदर जहालत रहती ना। जहालत अभी कौन दिखा रहे, वो तो दिख रहा है। अब बिला नहीं, वजह नहीं, मुझे वो तो मैं बता रहा हूँ। बरेलवी को बिला वजह आप बरेलवियों को तनकीद कर रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा जहालत देवबंदी के अंदर जहालत होती है, मैंने नहीं कहा। ये कॉल रिगार्डिंग में क्या क्या बोलते हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं, आप जो ये बदतमीजी आप कर रहे हैं, बीच में बोलना भी बदतमीजी है जनाब। भाई बोलो शेख, बोलो शेख। हाँ, तो आपने अभी 3 तरह की बातें की। आपने कहा अभी आला हजरत का तर्जुमा पढ़ रहा था, और फिर कहे महफूज के अंदर लिखा है, आला हजरत ने लिखा है या आला हजरत के किसी शागिर्द ने लिखा है। अब 3 तरह की बातें आपने अभी इसी रिकॉर्डिंग के अंदर 1 मिनट पहले आपने कही। इसमें से कौन सी बात सच है? और दोपहर में जो दावा किए, अभी आप दूसरी दावा कर रहे हैं। दोपहर में जो दावा किए थे वो दावा आप साबित नहीं कर पाए। दोपहर में आपने कहा कि जो इल्म गैब जाती होता है वही इल्म गैब होता है, अताई कोई इल्म गैब नहीं होता। हालांकि आपके देवबंद की किताबों में भी अताई इल्म गैब को सबूत है, मैं किताब पेश कर सकता हूँ, और आपने कोई भी इबारत अभी तक पेश नहीं किया। इल्म गैब के बारे में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इल्म गैब मानते हैं या नहीं मानते? ज्यादा मानते हैं या थोड़ा मानते हैं? तो आप अपना दावा पेश करेंगे और दलील देंगे, और आप आला हजरत के बारे में जो बोले उसका स्कैन भी भेजेंगे। अभी कॉल काटेंगे नहीं, कॉल काटने से पहले आप भेजेंगे, बात मुकम्मल मैं रिकॉर्डिंग में आपको, आप जो भेजेंगे उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है? आपने 3 तरह की बात की, उसका जवाब दीजिए। आपके 2 मिनट हो गए ना, मैं बात करूँ। देखिए सुनिए, अब सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए आप भी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि इल्म गैब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, जबकि आपके आला हजरत खुद लिख रहे हैं जब गैब किसी की तरफ मंसूब हो, गैब किसी की तरफ मंसूब हो, वो गोया कि अगर गैब अगर मुतलक कहा जाता है तो गोया कि वो इल्म ज़ाती होता है। बात समझ में आ रही? बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? बात वही तो है ना भाई। हम आपको अब सवाल, ये हमारा झगड़ा यही है कि जो चीज़ अताया उसको गैब नहीं कहते, हम भी वही बात बता रहे, और आला हजरत भी यही बात कही दी अपनी किताब में। कही दी है, क्या कही दी है कि जो चीज़ जब गैब किसी की तरफ मंसूब हो और मुतलक, जब गैब अगर मुतलक कहा जाता है तो वो इल्म ज़ाती होता है।
अगर यानी कि किसी की तरफ मंसूब यानी कि जैसा तुम लोग करते हो बरेली हो कि नबी को इल्म गैब है बोलकर, तो ये ऐसा अगर मुतलक गैब अगर नबी को इल्म गैब है बोलकर जब बोलते हैं वो इल्म जाती हो, ऐसा तशरीह नहीं करना बोल रहे आला हजरत। समझ मेरी बात? समझ में आपको नहीं आया, आप बिल्कुल समझे नहीं। एक तो आप कह रहे हैं इल्म गैब मुतलक, मुतलक का मतलब क्या है आप समझे नहीं। आप अगर समझे हैं तो मुतलक का मतलब समझाए, नहीं तो मैं समझाता हूँ, आप समझे। मुझे समझाए मुतलक किसे कहते हैं। मुतलक यानी कि खुला खुला बोले ना कि भाई तो ये तुम जो अस्तगफिरुल्लाह। है इल्म इल्म जो इल्म गैब तुम नबी को लगाते ना तुम लोग, खुला यही खुला तो मुतलक कहते। खुला खुला नबी को इल्म गैब बोल देते तुम लोग। तो तुम अरे छुपा तुम छुपा कहते हो, हम खुला खुला करते हैं। हम तो नबी अल्लाह को जो बोलते इल्म गैब, हम छुप के भी नहीं बोलते, हम खुला खुला तो बोलते, अल्लाह के बारे में बोलते। ये इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की जात को है। मुतलक का माना पूछा तो आप किधर किधर जा रहे हैं। आपके पास भाई मुतलक अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते, इल्म गैब नबी के लिए मुतलक का इस्तेमाल नहीं माना करते। समझे, मुतलक किसे कहते हैं मुझे मुतलक समझाए, बताया ना मुतलक मुतलक समझाए। समझाया ना। आपको मालूम नहीं तो आप बोलना चाहिए, बिला वजह आप गलत तावील कर रहे हैं। नहीं तावील तावील गलत को तावील आप मुतलक कर किसको रहे कहते हैं। हैं? अगर मुतलक किसी की मुतलक यानी कि एग्जाम्पल आप ही चोर है बोल के बोल दिया, मैं मुतलक बोल दिया, आप मुफहम इसे में बात नहीं मुतलक रखा, आप ही चोर है बोल रहा हूँ मैं। ये आप ही चोर है कहना, ये मुतलक कहना हुआ। तो बस मुतलक डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट मुतलक का मतलब डायरेक्ट नहीं होता है। देवबंदी आपके मौलवियों ने अपने आपके मौलवियों ने कुछ सिखाया नहीं। छुप के होता है। मुतलक का मतलब मत बताओ पहले, मुतलक चलो किसे कहते हैं। मैं नहीं बता दिया मालूम ना आप मुझे तुम्हारे। पूछे, नहीं मेरे को मालूम है, मैं बता रहा हूँ ना तो मुतलक मालूम है किसको तो आप कहते हैं। बताएं, झूठ गलत मैं नहीं मिसालें बताएं। देकर समझा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मिसालें देकर समझाता, अल्लाह ताला भी, इसलिए मैं तुम्हारे समझा रहा हूँ। मुतलक यानी कि आप कुल्ला कुल्ला बोल रहे भाई, कुल्ला कुल्ला ये बात है कि भाई तुम नबी को इल्म गैब बोल दे रहे, बोल रहे ना तुम बरेली हो, नहीं बोलते तुम, छुप छुप के बोलते। मुतलक यानी कि तुम लोग मुतलक बोलते नबी को इल्म गैब। मुतलक और मुक़य्यद, देखो तुमको मालूम नहीं, 3 बार मैंने पूछा, 3 बार आप गलत तावील किए, बार बार मैं वक्त मुतलक का ज़ाया नहीं माना करूंगा। करवा रहे हो, चलो ठीक है। मुतलक का माना क्या है, मुतलक किसे कहते हैं, मुतलक की क्या ये है, मुतलक किसे कहते हैं, मुतलक की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। बोलो, तुम बोलो। मैं बोल रहा हूँ खामोशी से, आप सुने। 3 बार आपको टाइम दिया, अब मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। तफसील से मत समझाओ, मुतलक का माना बोलो पहले। तफसील से वक्त क्यों आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जब आप समझा नहीं पाए, आपको तफसील से समझाने टाइम दिया, आप समझा नहीं पाए, क्यों हट धर्मी कर रहे हैं आप। ठीक है, मुतलक का माना करके आप देवबंदी उलमा को जहन्नम से बचा की बात पाएंगे। नहीं यार, तुम मुतलक की बात कर रहे हो, मुतलक का माना यहाँ मालूम पर नहीं, तुम्हारा जो है आला चलो हज़रत फिर खुद लिख से दिए। मुतलक का माना मालूम नहीं, फिर हट धर्मी कर रहे हैं, आप हट धर्म साबित हो रहे हैं। तो गोया कि वो दिल में जाती होता है। मुतलक नहीं समझ रहे हैं आप, बार बार वही लफ्ज दोहरा रहे हैं, मुतलक नहीं समझ में आ रहे हैं। अच्छा बोलिए बोलिए, आला हज़रत का तफसीर बताइए। आला हज़रत मुतलक मतलब मुतलक और मुतलक के खिलाफ होता है मुक़य्यद। मुक़य्यद आप समझो, एक यहाँ सामने रखा हुआ है बर्तन, हाँ। एक बर्तन रखा हुआ है, तो मैं एक लफ्ज कह दूं बर्तन, ये हो गया मुतलक। और मैं कह दूं, सुनो पूरी बात बीच में क्यों बोलते हो। बर्तन की जगह मैं गैब ले लेता हूँ। हाँ, तो एक चीज की मिसाल दे रहा हूँ, एक बर्तन है, बर्तन की जगह मैं गैब ले रहा हूँ। हाँ ले लो, मैं बोल रहा हूँ ये लफ्ज बर्तन ये मुतलक हुआ। और अगर कह दूं कि मेरा बर्तन है, ये बर्तन मेरा है, या फिर किसी और लफ्ज को जोड़ दूं, या किसी और लफ्ज को मुक़य्यद कर दूं, यहाँ चार बर्तन है या 5 बर्तन है, ये बर्तन किसी और का, ये बर्तन जो है इमरान का है, ये बर्तन मेरा है, तो ये हो गया मुक़य्यद। और सिर्फ बर्तन बोलने से मुतलक हुआ। तो अभी अगर इल्म गैब नहीं अभी ये बोलो, वो बर्तन मुक़य्यद कर लिया आप, यानी कि वो बर्तन आपका है, बर्तन बोले तो ये मुतलक हो गया। अगर आपका क्या नाम है आपका बोले? मेरा नाम जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का बर्तन है ये, तो ये होगा मुक़य्यद कर लिया आप, मुक़य्यद। और सिर्फ बर्तन बोलने से मुतलक होता है। अब इल्म गैब के बारे में आप सुनो, तुम समझा नहीं पाए। पर मिसाल फिट करो। अब तुम नबी के लिए, नबी को इल्म गैब बोलते, ये नबी के लिए मुक़य्यद कर लिया आप। हाँ, अब मुतलक नहीं रहा ना, मुतलक बोलने से फंस गया आज, बरेली फंस गया आज। बोलो बोलो बोलो, कैसे फंस गए?
बोलो, अब नबी के लिए मुखिद कर लिए तुम इल्म गैब। कितने जाहिल है देवबंदी, कितने बोलने से पूरी बात हो ही नहीं। अच्छा मुतलक बोल रहा मेरा भाई, दो भी फंस जाते, दो भी माना कर ले, दो भी फंस गए नहीं, दो भी माने कर ले तब भी तू फंसे वाला है मेरे भाई। अगर तू मुतलक बोल ले तो जो है ना वो अल्लाह के लिए, के लिए। अगर मुखीद कर लिया नौज बिल्ला, अल्लाह के लिए नबी को इल्म गैब बता रहा, हाँ तो नौज बिल्ला अल्लाह फरमा रहे आलिमुल गैब तो अल्लाह की जात है, इल्म गैब तो अल्लाह की जात है, अल्लाह की भी जात है। अगर बात बिल माना तेरा ये है कि नबी को भी अल्लाह को भी इल्म गैब है, तो फिर यहाँ पर जो है ना नबी के लिए खास कर रहा था, और जबकि तुम्हारे पास तो हर अल्लाह के वलियों को भी इल्म गैब रहता तुम्हारे पास तो हर एक को इल्म गैब रहता। बात तुम समझा नहीं पा रहे हो, तुम सिर्फ बात को लफ्ज़ को फिर घुमा फिरा रहे हो। ये रिगार्डिंग इंशाल्लाह सुन लेंगी पब्लिक, घुमा फिरा रहे हो, तुम्हारी बात कोई नहीं समझ पाएगा। बरेली इमरान हनफी जो है ना देवबंदी, असली अहले हदीस, असली अहले सुन्नतुल जमात, असली अहले हदीस, असली अहले कुरान, आज तुम्हारे मानने में तुमको फंसा चुका। चलो तुम ये बताओ, तुम्हारे फिर एक बार मौका देते, तुम जो बोल रहे हैं कि भाई बर्तन, जैसा बर्तन तुम बोल दिए, बर्तन यानी कि मैं बोल दिया गैब। अब ये गैब जो है ना ये मुतलक है, ठीक है ना। अब आप जो नबी के लिए तुम जो है बर्तन इल्म गैब मुखीद कर रहे हैं क्या? फिर आप मेरे को बोलो, नबी के लिए इल्म गैब कैसा अकीदा रखते हैं आप बताइए? अच्छा, मुक़य्यद रखते हैं या मुतलक रखते हैं आप? अब वही मैं शुरू में जो मिसाल दिया, अब तुम चुपचाप सुनोगे, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल चुपचाप सुना। अच्छा ठीक है, ठीक है। लफ्ज़ आलिमुल गैब जब हम कहेंगे आलिमुल गैब तो सामने वाला समझेगा अल्लाह के बारे में कह रहा है, तो सामने वाला क्या भी समझा नहीं, मेरे को बोलो तुम, ये नबी के लिए जो मुतलक बोलेंगे या मुक़य्यद करके बोलेंगे? क्या पागल इंसान है, पूरा बोलने भी नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारी बात पूरे मुकम्मल सुना ना, तो आखिर में एतराज करना हमारी बात होने के बाद। पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट 2 मिनट मेरी बात सुनोगे तब तो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, फिर 2 मिनट सुन लेंगे, 2 मिनट तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी तो 2-3 मिनट में चुपचाप सुना। अच्छा तुम 2-3 मिनट चुपचाप सुनोगे, जब समझ में आएगा कि क्या मसला है। तुम तो कुछ नहीं समझा पा रहे हो ना समझ पा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, से पैदल है, इसलिए अशरफ अली थानवी ने कहा बंद कर दिया, फंस गए तुम। चुप हो जाओ, फंसे कौन वो पता चलेगा। चलो ठीक है, क्या फंसे वो भी समझ नहीं पा रहे हो। मौका तुम्हारे को 2 मिनट, फिर बाहर निकलने का मौका दे दो। आलिमुल गैब जब कहेंगे आलिमुल गैब, इल्म गैब, आलिमुल गैब, तो समझ में आएगा कि अल्लाह के बारे में बोल रहा है। जब हम कहेंगे इल्म गैब रसूल, तो अब ये मुक़य्यद हुआ। इल्म गैब अल्लाह बोलने की जरूरत नहीं, इल्म गैब बोलते ही अल्लाह के बारे में, आलिमुल गैब बोलते ही अल्लाह के बारे में आएगा। लेकिन अगर उसको मुक़य्यद करेंगे, मुतलक बोलेंगे, तो अल्लाह के बारे में ही होगा और जाती के बारे में ही होगा। आला हजरत ने जो बोला बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इल्म गैब जब बिल्कुल मुतलक बोला जाए तो जाती ही मुराद होता है, मुतलक बोला जाए। इसी तरह जब हम बोलेंगे इल्म गैब, तो अल्लाह के बारे में अल्लाह की एक सिफात बयान हुआ। इल्म गैब अल्लाह की सिफात है, आलिमुल गैब अल्लाह ताला की सिफाती नाम है। और जब कहेंगे इल्म गैब रसूल, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गायब का इल्म अल्लाह ताला ने दिया है वो अताई है और मुक़य्यद हुआ। जैसा मैंने बर्तन के बारे में बताया कि मेरा बर्तन, और हो गया मुक़य्यद, और सिर्फ बर्तन बोलेंगे तो मुतलक हुआ। मुतलक बोले तो इसका कोई कायद नहीं, किसी का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अभी आप ये बोल रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब है ये मुक़य्यद कर लिए। हाँ, मुक़य्यद नबी के लिए मुक़य्यद हुआ, और मुतलक यानी कि उसके अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है, बोलना चाह रहे हैं। कोई नबी के लिए खास हो गया। मुतलक बोलने से उसकी हद और लिमिट नहीं रहता। इल्म गैब नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, नबी के लिए इल्म गैब है, यानी मुक़य्यद कर लिया, यानी कि ये जो है ना पर्टिकुलर नबी के लिए इल्म गैब। ठीक है, कितने बड़े जाहिल है। देखो मैं ये नहीं कहा कि अल्लाह को नहीं है, नबी का। चुपचाप सुनो, तू तो खुद कहा ना बर्तन तेरा है, जब तू अपने तरफ, तूने खुद कहा ना मुतलक का माना ये है कि मेरे तरफ कर लिया तो मुतलक नहीं रहा ना। 3 बार मैंने समझाया, इन्होंने 3 बार समझा, नबी के लिए खास कर लिया ना, फिर इल्म गैब। अब देखो कोई चीज, कोई सामान है। अजी भाई मेरे 2 मिनट अभी स्टार्ट हुए, सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझा दिए ना, सुनो। अब तुमने जो माना क्या, एक मुतलक किया, एक मुक़य्यद किया। नबी के लिए तुम इल्म गैब, नबी के लिए मुक़य्यद मानते तुम। जब इल्म गैब कहा जाता है तो मुक़य्यद मानते, यानी कि ये अल्लाह के नबी की सिफतें बता रहे थे। और मुक़य्यद का माना आप ये कर रहे हैं कि भाई एक बर्तन उसी का है, मतलब इसमें किसी को जो है ना, यानी कि
मतलब वो उसी का है, किसी का नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है ना, तुम नबी के लिए जो इल्म गैब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अल्लाह के लिए है ना बाद वालों के लिए, या सिर्फ नबी के लिए मुक़य्यद कर लिया आप, ठीक है ना, मुक़य्यद जो कर लिए आप, ये है ना तुम्हारा माना, ये है ना। हाँ, मेरा माना ये नहीं रहा। फिर तुम अभी तो बोले ना नबी के लिए, मेरा माना नबी के लिए होता बोले ना, तुम मुक़य्यद कर लिए बोले। मुक़य्यद करने का भी देखो, जैसा मैं कहा कि इल्म गायब रसूल, तो गायब दुनिया में जितने गुयूब है अल्लाह ताला के पास, तमाम गुयूब की कुंजियां अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के तमाम गुयूब अल्लाह जानता है। उसमें से जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, उतने को हम इल्म गायब रसूल कहेंगे। तो उतना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़य्यद उतना है, और उतना लिमिट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म क्या है? लिमिट है। और अल्लाह ताला के इल्म है अनलिमिटेड। अल्लाह ताला का इल्म का कोई हद नहीं, उसे मुतलक कहते हैं, जिसका ना हद है ना उसका किसी की तरफ उसका कैद है। सिर्फ बे इंतहा और बेहद जो इल्म है वो अल्लाह ताला की सिफात है, और उसमें से अल्लाह ताला की सिफात और अल्लाह ताला के इल्म के खजाने में से अल्लाह ने जितना चाहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और जितना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया उतने चीज़ें रसूल के लिए मुक़य्यद है। और जो मुक़य्यद नहीं है सारा का सारा वो अल्लाह ताला का उलूम है। अल्लाह ताला का उलूम मुतलक है और अनलिमिटेड है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उलूम लिमिटेड है और मुक़य्यद है। फर्क समझ में आया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुक़य्यद है बोल रहे आप, ठीक है ना? मुक़य्यद है, लिमिटेड है। मुक़य्यद का मतलब आपने एक माना कर दिया कि जैसा कि बर्तन के ताल्लुक से मिसाल भी दे दी आप, रिकॉर्ड हो रहा है, मिसाल दे दिया। नबी के लिए है वो। तो नबी जितना अल्लाह ने नबी को दिया वो नबी के लिए ही है। अल्लाह ने दिया, अल्लाह का दिया हुआ। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है, या तो तुम्हारा रहेगा या तो मेरा रहेगा, ठीक है, या आप बीच में रख दे के बोल रहे ये बर्तन है, मुतलक बोल रहे, किसका भी हो सकता, या फिर तुम बोल रहे या तो तुम्हारा या तो मेरा, या तो अल्लाह के पास इल्म गैब या तो नबी के पास। आप नबी के लिए मुक़य्यद कर लिए, मुक़य्यद जो कर लिए नबी के लिए कर लिए, तो फिर अल्लाह के पास क्या रहा फिर? तो अस्तगफिरुल्लाह, तुमको इतना अकल होना चाहिए। सुनो, जहालत से निकल के बाहर आओ, अभी जहालत से निकल के तुम बाहर आओ। सुनो, तुम खुद माना करे ना, बर्तन तुम्हारा है बोल के बोल दिए। अब जब बर्तन तुम्हारा हो गया तो फिर मेरा भी होगा क्या वो? तुम चुप बोल के चुप हो जाओ। जब तुम अपने आप का बर्तन बोल दिए ये मेरा है, खत्म हो गई बात। वहाँ तेरा अभी दूसरों का शेयर ही नहीं होता उसमें। अच्छा, तुम्हारा सुनो, तुम्हारा घर जब है। तू खुद माना, सुनो मेरी बात 2 मिनट होने दो। अब मैं कुरान की आयत देने लगा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत खुद है, मैं गैब नहीं जानता। क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता? तुम्हारी बात हो गई, मैं बोलूं? अरे मेरे भाई सुन, अब सुनने की ताकत रख, जिसम में ताकत रख। अब नबी अलैहिस्सलाम मुक़य्यद कर रहे, मुक़य्यद से जो कर रहा ना, नबी के लिए गैब मुक़य्यद हो गया, यानी कि मैं गैब नहीं जानता। नबी खुद फरमा रहे मैं गैब नहीं जानता, ठीक है ना? बात हो गई तुम्हारी? अरे मेरा भाई बात तो सुन, अभी कहाँ हुए थे भाई, अभी तो बैंड बजाना है बरेलियों की। सुनो, अब यहाँ पर मुक़य्यद का जो माना करे तुम, और मुक़य्यद का जो माना करे, नबी अलैहिस्सलाम अपने लिए मुक़य्यद कर रहे कि मैं गैब नहीं जानता। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोल रहे, मेरे रब ने मुझे जो बात बताई है मैं वो बता रहा हूँ कि सारा का सारा गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। बात हो गई तुम्हारी? ये किसकी बात है? कुरान की बात है। अब तुम और कितनी देर बोलोगे? मुझे बोलने दोगे? समझा रहा हूँ, समझा लिया तुमने। मुक़य्यद जो है नबी खुद कर रहे अपने वास्ते, और तुम जबरदस्ती नबी को इल्म गैब मुक़य्यद कर दे रहे, जबकि नबी खुद अपने लिए कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता। नबी मुक़य्यद कर रहे अपने लिए कि मैं गैब नहीं जानता, और तुम बरेली हो, नबी के खाते में झूठ बोल रहे कि नबी इल्म गैब जानने वाले बोल के। अच्छा, बात हो गई तुम्हारी? अब बताओ, कुरान की बात मानेंगे बरेलियों की बात मानेंगे? कुरान की बात मानेंगे तो ईमान बचे आला रहेगा, अगर बरेली की बात मानेंगे तो ईमान चले जाएगा। बात हो गया तुम्हारी, और मुझे बोलने दो। अभी 2 मिनट, तुम्हारे 2 मिनट से ज्यादा हो गया। जब तुम्हारा घर है और वो अल्लाह का भी है, सारी चीजें कायनात की हर चीज अल्लाह का है, उसमें अल्लाह ताला अताई तौर पर तुमको भी मालिक बनाया है। जितने चीज का तुम मालिक हो वो तुम्हारी टेम्पोरली तुम्हारी मिल्कियत है। तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा दुकान है, ये सब तुम भी मालिक हो, अल्लाह भी मालिक है।
दोनों है। मैं बार बार सवाल नहीं पूछूंगा, फिर तुम बोलने लंबी जवाब दोगे। मैं 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, इसमें अगर गलती हो जो बाद भी में बोल रहे बताना। तुम समझ के बोलो, हाँ समझ, ऐसा मैं ना बोल हो रहा कि हूँ, फिर चुप कूदे हो जाओ जाओ, तुम फिर। चुपचाप तुम्हारी बात मैंने सुना। हाँ, घर की वो बात तुम्हारे जितनी चीजों का तुम मालिक हो आओ। वो तुम्हारा टेम्पोरली तुम्हारी मिल्कियत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उतना इल्म का अल्लाह भी मालिक है और उतना इल्म का नबी भी मालिक है। और अच्छा। कायनात के हर जर्रा जर्रा का, कायनात के अल्लाह ताला हर चीज जानता है और अल्लाह की अता से नबी जानते हैं। ये अल्लाह ताला के पास से खाली नहीं हुआ। तुम जैसा करें ना, सब नबी मालिक नबी जानते हैं तो अल्लाह के पास नहीं रहा, मुक़य्यद हो गया तो मुतलक नहीं रहा। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास मुतलक उलूम है, उसमें से अल्लाह जितना चाहा नबी को दिया और नबी का उलूम इल्म गैब अताई है। और तुम जो बोल रहे आयत दूंगा ता क़यामत, तुमने कोई ऐसी आयत नहीं दे सकते जिसके अंदर ऐसी हो कि मैं गायब नहीं जानता। उसके आगे पीछे देखो, उस आयत के अंदर मैं उस आयत को समझा दूंगा। और इल्म गायब मानने से अगर काफिर हो जाता है, सबसे पहला काफिर अशरफ अली थानवी और मुफ्ती शफी देवबंदी और देवबंद के जितने अनवर शाह कश्मीरी और जितने देवबंदी मौलवी हैं, सबसे पहले काफिर साबित हो जाएगा। तुम्हारी किताब मैं अभी पेश करूंगा, जिसके अंदर तुम्हारी किताब में भी एक नहीं, तुम्हारी 4 किताब मेरे पास है, जिसमें इल्म गैब तुम्हारे उलमा माना है, बाज उलूम गैबिया तुम मानते हो। और अगर इल्म गैब नबी कह रहे मेरे पास गायब नहीं है, तो मेरे पास गायब नहीं है, नबी कह रहे उस आयत से अगर तुम समझ रहे हैं नबी को गायब नहीं है, तो और तुम्हारे मौलवी ने गायब माना है, तो तुम्हारे मौलवी खुद उस आयत का इनकार किया है खुद। और सुनो, जिस आयत में इल्म गैब का इनकार है उस आगे पीछे की आयत पढ़ो। तुम अभी आयत पेश करो, मैं आयत तुमको समझा देता हूँ। तुम्हारे मौलवी ने नहीं समझाया, मैं समझा देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए। आप जो है ना, देखिए आप इल्म से पैदल है, ठीक है। आप खुद एक तरफ जो है ना मुतलक का माना कर रहे हैं, मुक़य्यद का माना कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है ना, तुमने खुद मालूम किया कि मुक़य्यद का माना ये है कि सिर्फ मेरा बर्तन है, ठीक है, तुम्हारी रिगार्डिंग है मेरे पास। आप कह रहे हो कि नहीं, इसमें अल्लाह का भी है और बंदे का भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना जो इस्तेलाल कर रहे हैं, ठीक है ना, आप या इसको जो है ना। और एक दूसरी बात कि तुम्हारे आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेली खुद ने तर्जुमा जाके उठाकर देख लो, खुद लिखे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत के बारे में, चला वो आयत पेश करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तर्जुमा क्या लिखता है आला हजरत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं गैब नहीं जानता, गैब जान लिया होता तो ऐसा करता। तो आयत पेश करो, चलो आयत पेश करो। आयत पेश करता हूँ, बरेली रज़ा खानी से कंजुल तुम्हारा ये जो है, जो तुम्हारी कुरान की तर्जुमा है ना, तुम्हारा आला हज़रत जो है ना, समझो नौज़बिल्ला दूसरे खुदा तुम्हारे, उनका तर्जुमा पेश करता हूँ। तो बस तकबीरुल्लाह। अच्छा सुनो, तुमने वही है तर्जुमा, तुम खुदा मानते हो उनको, जबान से नहीं बोलते तो क्या हुआ, जो उन्होंने तर्जुमा लिखी थी वही हक है, वही खुदा है, वही रसूल है। उनके आगे अगर कोई दूसरा तर्जुमा बोल दे वो काफिर है, क्योंकि तुम उनको खुदा समझ लिए ना, क्योंकि खुदा के अपोजिट में काफिर रहता ना बंदा, जो खुदा को बुरा बोला उन्हें काफिर, नौज़बिल्ला। ये तो है ना, हमारे अकीदे में ये बात लिखी आली है, तो नौज़बिल्ला खुदा के कुरान को नहीं मानता उन्हें काफिर, हदीस को नहीं मानता उन्हें काफिर। इसी तरह आला हज़रत के तर्जुमे को नहीं मानता वो भी काफिर तुम्हारे पास। चलो बोलो। तुम लोग जो है ना इतने तो गुलू कर दिए, लेकिन जबान से नहीं बोलते ना। कहाँ बोलते तुम लोग? नहीं, हम जबान से नहीं बोलते हैं, तो चढ़ा के रख ली है, हो गई, कभी इनसे गलती नहीं हुई। लफाजी मत करो, बात प्यार से बात हो रही है। देखो अगर तुम कभी बरेलियों से साबित नहीं करा ये तर्जुमा, ठीक है ना, मैं गैब नहीं जानता, अगर ये गैब जान लिया होता तो ऐसा करता, नबी का खुद तर्जुमा गैब बरेली करा तो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। बोलो। तुम तो बोले कयामत तक नहीं बताते, इंशाल्लाह इमरान हनफी बता के बताएंगा तुम्हारे। हाँ, हनफी है कि जनफी है अभी देखा जाएगा। पेश करो ना यार, बोलते जा रहे हैं, पेश नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम लाइन पे रहो, लाइन पे नहीं पेश करना, दोपहर की तरह भागना नहीं, झूठ बोल के, दोपहर की तरह झूठ बोल के भागना नहीं। आप जो है बोल के सबूत दे के जाना है। दोपहर में जो दावा पेश किया वो झूठा साबित हो गए तुम। अगर उसमें मैं तर्जुमा बताया तो फिर आला हज़रत को बताएंगे, तो उसमें तो तुम झूठा अगर मगर की बात नहीं, आप दलील से बात हो रही है ना। मैंने अगर मगर नहीं कहा, मैंने अगर मगर नहीं कहा,
मैंने अगर मगर नहीं ठीक है, मैं कहा। अभी कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। अगर पेश करो। नहीं, अभी पेश कर रहा हूँ, ठहरो, सब्र रखो, लाइन पे रहो। आया हजरत, आयत पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो तुम बोलो। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, कब्र में लहराएंगे, तहशर चश्मे नूर पे, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। देखिए दोपहर में भी कॉल कट करके भागा, अभी भी इनको दलील में नहीं मिल रहा है, खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। सबर और कर रहे हैं भाई, तुमको नहीं आता, तुम गुमराह हो और तुमको सिर्फ जहरीला बनाया गया हमारे खिलाफ भड़का के। आला हजरत कभी कहता है मुकीद, कभी कहता है मुतलक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह। मुतलक और मुक़य्यद मैंने अच्छी तरह समझा दिया, कॉल रिकॉर्ड सुनेंगे, आवाम समझ में आएगी। कभी कहता है, तुम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ रहे हो, लेकिन हट धर्मी की वजह से। मेरे को भी अल्लाह ताला इल्म गैब दे दिया, मेरे को भी मुकीद मान ले। नहीं, वो मैं मुक़य्यद क्या है मुतलक क्या है वो मैं अच्छी तरह समझा दिया, फिर से मैं समझाऊं। मेरे को भी मुकीद मान लेना, मेरे को भी अल्लाह ताला बहुत इल्म दिया। बहुत इल्म दिया, इल्म की बात नहीं हो रही, इल्म गैब की बात हो रही है। तो गैब की बातें मेरे को भी मालूम है। बताओ, कुछ बताओ गैब की बातें, क्या क्या बातें हैं। जो बताए वो तो मालूम मेरे को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से जब तुमको इल्म गैब तुम खुद के लिए मान रहे हो। अताई गैब है, अताई। हाँ हो सकता है, खत्म होगी बात, मेरे को भी इल्म गैब बोलो ना तुम। बोलने से क्या हो जाता है, इसमें इल्म गैब बोलने पर कोई ये है? बहुत सारे उलूम गैबिया अल्लाह ताला नबी की अता से, अल्लाह की अता से बंदे को भी अल्लाह ताला ने दिया है, उम्मत को भी दिया है, हम मानते हैं। उसमें बोलने में हमारी तो हम तो काफिर नहीं हो जाएंगे, लेकिन तुम खुद मुशरिक हो रहे हो। तुम अताई इल्म गैब तुम्हारे लिए मान रहे हो, नबी के लिए नहीं मान रहे, तुम्हारे मौलवियों के लिए मान रहे हो, नबी के लिए नहीं मान रहे हो, तुम तो मुशरिक हो रहे हो। लेकिन हम मुशरिक नहीं हो रहे, हमारे अकीदे के हिसाब से अताई उलूम अल्लाह ताला बंदे को देता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो जो शख्स वआतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, ये कुरान की आयत है। इस आयत की तफसीर में तफसीर रूहुल मानी के अंदर फरमाते हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हुआ रजुलुन यअलमु इल्मल गैब, वो शख्स जो इल्म गैब जानते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते थे। तो हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक गुलाम के लिए हम इल्म गैब मानते हैं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु वफात से पहले आप बता के गए उनकी बीवी के पेट में क्या है। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु बता के तारीखुल खुलफा में मौजूद है। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी के पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है, बता कर गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाची जान हजरत उम्मुल फजल रदी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि आपके पेट में जो बच्चा है खुलाफा का बाप होंगे, यानी 400-500 साल हुकूमत करेंगे, कितने बादशाह होंगे, बेटे पैदा हुए नहीं, उनके नस्ल में क्या क्या है, पुश्तों तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है और बताया है। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे और सुबह से लेकर मगरिब तक, इशा तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इब्तिदाए कायनात से लेकर आखिरी इंसान जन्नत में जाने तक, आखिरी इंसान जहन्नम में जाने तक, जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक का वाक़िया, जन्नती के जन्नत में जाने तक का वाक़िया बता दिया है। गैब नहीं बोलते रहे बेवकूफ, उसको
यहाँ पर है, यहाँ पर आया दे यार एक मित्र को तो तेरे नंबर जब- पे डाल दो, जरा मैसेज कर। यहाँ पर है, देखो, यहाँ पर तू जब से बोल रहा था आप ना कितना कयामत तक। बुखलाहट का शिकार है देवबंदी। कभी आप बोलते हैं, कभी तू बोलते हैं, कभी बदतमीजी से बात करते हैं, ये है नहीं, इनका। तुम जो है अभी बोलते हैं ना, अल्लाह शुरू में बोला यहाँ पर बरेली भी अल्लाह के बद नबी अखलाक होते सल्लल्लाहु अलैहि हैं। वसल्लम। अभी देखो कितने बद अखलाक है। मैं तुम- कभी भी इसको आप कह के ही बोल रहा हूँ। जब भी मैं बात कर रहा हूँ, शुरू से लेकर मैं कभी बदतमीजी से बात नहीं किया। आप देखो अच्छा, बार बार क्या तू तरह सुनिए, से बात कर रहे हैं, आलिम जनाब से बात कर रहे हैं, जाहिल। अरे अरे जनाब अली सुनिए, अब तुम्हारी बरेलियत तो मत आप फिर दिखाओ। दोबारा तू तरह से बात नहीं करने वाला करो। देखो यहाँ पर है तो मैं अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता। देखो बरेली का तर्जुमा क्या है, अगर गायब जान लिया होता तो क्या होता, पूरा बोलो, पढ़ो। तो यूं होता कि मैं बहुत से भलाइयाँ करता। यहाँ देखो हाँ, तो सुनो। ठहरो, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? हाँ, मेरा व्हाट्सएप में मैसेज किया था आपको, देखो। दोपहर को भी हेलो लिख के भेजा था। मैसेज करो। मैसेज किया था, दोपहर को भी किया था। हाँ मैं भेजा, देखो पढ़ो क्या है, पढ़ो। मैंने मैसेज कर रहा, अभी मैसेज कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं डाल दिया तुम्हारे को, देखो। अच्छा, मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। हाँ पढ़ के सुनाओ। अब इसमें अगर गैब नहीं जानते बोल रहे अल्लाह के नबी, चलो बताओ। अब तक तुम बोल रहे थे ना कयामत तक नहीं पेश कर सकते बरेली। हाँ, इस आयत को समझना, तुमको समझना पड़ेगा ना। हाँ तो घुमा आयत तो देखो, 73 फिरके की आयत तो 73 पढ़, तरह से समझते हैं। बाद में घुमा, मगर मेरे भाई घुमाने की बात नहीं, आयत को समझना। तुमको समझ जाओगे ना, अभी देवबंदी से तौबा करोगे। ईमान बचा आला हजरत का। चल बोल, तर्जुमा पढ़िए पहले। देखो फिर बदतमीजी से बात कर रहा है। अच्छा पढ़ो ना, फिर पढ़ रहे क्यों नहीं? फिर मैं आपको क्या, कितनी इज्जत से आप कह के बोल रहा हूँ ना। आप बार बार क्यों आपे से आपको बाहर हो बोल रहा रहे हूँ, हो? आप क्योंकि आपको पता मैं बोल है रहा हूँ, आप पढ़ो। आप गुमराह साबित हो रहे हो, आपको गुस्सा है। आप पढ़ो, आप पढ़ो। आप गुमराह साबित हो रहे हो, आपको इसलिए गुस्सा है। हमको तो गुस्सा नहीं है। हम प्यार से एक उम्मत जहन्नम से बच जाए, मैं ये सोचता हूँ कि मैं प्यार से बात करने से अगर मैं नबी की एक उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना मिल गया जैसा मैं ये समझता हूँ। लेकिन आप समझते हो, आप हमें जलील करना चाहते हो, आप हमें गुस्सा में आप आपे से बाहर हो रहे हो, हमें हमसे बदला लेना चाहते हो। कोई बदला नहीं की बात नहीं। फिर क्या बात, गुस्सा क्यों आ रही? तुझे बात करने की जरूरत क्या है? अल्लाह की सिफत को जो है मखलूकों में तकसीम करोगे तो तुम मखलूक में कौन कर रहा है वो तो मैं देखता हूँ। अल्लाह की सिफतों को तुम जो है मखलूक को मालिक बनोगे अल्लाह की सिफत का। हाँ तो अभी देखते हैं कौन अल्लाह के इस बंदे आयत हैं, से हम अल्लाह के खलीफा है, हम सरजमीन पर ये शिर्क होने नहीं देंगे। शिरक कौन कर रहा है वो दिखाता हूँ आज पता चल जाएगा मक्का मुशरिक कौन है। ये तो भगवान ऊपर ही है, लेकिन अब ये पावर रखते हैं, ये भी मालिक है, ये सर का दर्द कम करने वाले, ये बारिश बरसाने वाले, ये सब 360 भगवान रखते थे उन्होंने। मुशरिक का ये अकीदा था कि खुदा परमात्मा तो एक ही है, आज भी बोलते, लेकिन ये जो खुदाएं हैं ये उनके बच्चे हैं, ये उनके फॉलोवर है, ये इनके मालिक है। हमारे को नफा नुकसान के मालिक है। इन्हों बड़े मालिक है ना छोटे मालिक है। हाँ बोलो, ये कुरान की आयत पढ़ो पहले। हाँ, तो इस आयत में सामईन इकराम इन्होंने बहुत कुछ बोला, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब मैं मुकम्मल इनसे बात करूंगा, 2 मिनट खामोशी से सुने। बात न तो करो, तुम तर्जुमा पढ़ते बोले पढ़ो। तर्जुमा पढ़ के ही मैं समझा, 2 मिनट में मैं समझा। तुम 4 मिनट बोले, मैं 2 मिनट नहीं बोल सकता, मेरा भी हक है बोलने का। प्लीज बोलो जरा सबर से सुनो। वलाउ जो है ना, लाउ है, ये अरबी में जुमला शर्तिया है, शर्त। अगर मैं गायब जानता, भलाई हासिल होती, बहुत सारी भलाई हासिल कर लेता। नबी के पास सुनो, नबी के पास भलाइयाँ, बहुत सारे भलाइयाँ है ऑलरेडी, खैर कसीर नबी को है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, नबी को कसीर जमाने की बात कर रहे हैं, 2 मिनट मुकम्मल, 2 मिनट। यहाँ किस भलाई की बात कर रही है? आप सुनो, समझ में आने, तुमको आया समझ में आने के लिए शान नुज़ूल होना, उसकी तफसीर होना। तुम मुफस्सिर कुरान है ही नहीं। हाँ, तो मुफस्सिर कुरान, मैं भी मुफस्सिर कुरान हूँ। तो यहाँ पर किस बारे में आयत नाजिल हुई? वो समझाता हूँ, सुनो। हाँ, तो किस भलाइयों को जमा करने की बात कर रही थी ये? हाँ, तो ये नबी जो, और अल्लाह के नबी अपनी नफी कर रहे हैं, मैं गैब नहीं जानता। गैब जान लेता होता तो क्या करता? भलाइयाँ हासिल कर लेता। हाँ, तो कौन से भलाइयाँ? तो भलाइयाँ हासिल की है या नहीं की है नबी? भलाइयाँ वो बोलो, कौन से भलाइयाँ थे वो? कोई भी भलाई, जब नबी गायब, एक भी गायब नहीं है तो एक भी भलाई नहीं है। वहाँ पर ये बात बताई जा रही थी कि उस वक्त मुशरिकीन मक्का या कुछ साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
आए अल्लाह के नबी के पास, ए अल्लाह के रसूल, आप अगर जो है ना हमारे को मार्केट के जो हालात है, वो कौन सी सब्जी महंगी होने वाली है, कौन सी तिजारत कब नुकसान कब नफा होने वाला है, आप हमको बता दीजिए ताकि हम स्टॉक कर लेंगे, माल सामान स्टॉक कर लेकर, फिर हम जब कोई चीज महंगी हो जाएंगी तो जब वो हमारा सामान निकाल कर हम खरीदो फरोख्त करेंगे, ताकि हमको तमाम भलाइयाँ तमाम जो है ना उसकी जो है ना ये होंगे। बल्कि उसमें आयत का पस मंजर है वो। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि मैं गैब नहीं जानता, अगर वैसा गैब जान लेता तो और बहुत सारे भलाइयाँ कर सकता उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम को जो पेट पे पथरे बने, जो इससे मुश्किलात आए, परेशानियां आए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपको जो है आपके दांत मुबारक शहीद हुए, आपको खून उनसे लोलहान किया गया, आपकी बेटी आपके बच्चों को जो है सारी चीजें हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हर चीज मालूम हो जाता था तो ये कभी नुकसान नहीं होता था नबी को, बल्कि तमाम भलाइयां लेता था। तो पता चला यहाँ पर इस आयत का पस मंजर क्या है, बरेलियत की ज़हन से नहीं समझना है, बल्कि कुरान के आयत के पस मंजर से समझेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन भलाइयों की जमा करने की बात कर रहे हैं वो भलाई और बात है। अब तुम भलाई बोले तो तुम बोलेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत सारी भलाई करे वो जो माना करके लोगों को बेवकूफ बनाओगे तुम। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि ये जो सहाबा आए थे अपने पास, कि वो क्या समझ रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानने वाले हैं, ठीक है, जैसा बरेली है तो वैसा समझ लिए थे नबी के मौजज़ात को देखकर। नबी क्योंकि हर चीज बोल देते ना, माँ के पेट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा के जरिए से नबी बोलते थे। अब वो कुछ सहाबा ये समझ लिए थे कि वो खुद मालिक होंगे गैब के, तो हर चीज नबी जानते, तो लिहाजा पूछेंगे। तो नबी फरमा रहे मैं गैब नहीं जानता। क्या फरमा रहे? अरे बरेलियों सुनो, कान खोल के सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सो गए ना तो? सुन रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी 4-5 मिनट बोलते हो। कुछ तो शर्म करो यार, तुम लोग कुरान की शर्म आयत तुमको का नहीं मजाक है, उड़ाते हो। खुद आला हजरत तुमको का शर्म तर्जुमा लगा आया दिया, कुछ नहीं है, हजरत बार देख बार सकते तुम हैं। बोलते जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। कितने बेशर्म इंसान तुम हो, गैब खुद लिखता बेशर्म है, इंसान खुद तुम, कितने बरेली बेशर्म आलिम इंसान हो। अहमद तो रजा बोल, खान खुद लिखता है चुप गैब हो नहीं जाओ। जानता, गैब जान लिया कर लेता। अरे वो बार बार तुम दोहरा रहे हो, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे गैब हो। जान लिया कर लेता। बार बार तर्जुमा भी कैसा लिखा, इसको मुझे अरबी बोलने भी नहीं नहीं आती, दे कुछ रहे हो। पढ़ने नहीं आता। बोलूंगा तो आला तुम्हारी हजरत सारी भंडा फूट तर्जुमा जाएगी। तर्जुमा कैसा लिखा आवाज से देखो, तर्जुमा कर गैब रहा जान हूँ, लिया सुनो करता जरा। तो कहते ये कौन सा तर्जुमा है यारो? मैं बोल रहा हूँ, समझ में समझा देता हूँ। आला लाओ हजरत किसे उर्दू कहते आती हैं? थी, अरबी अहमद में रजा जो खान लफ्ज़ साहब लाओ को। है, लाउ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। क्या होता ये जुमला तर्जुमा, क्या होता? शर्तिया होता है। सुनो, पूरा सुनो। हम्म? एक मैं मिसाल से, तुम 4 मिनट बोले, वाकया बताए, नहीं, मैंने तर्जुमा पूरा बोलो, क्या मुकम्मल। बोले? चुप हो जा। मैं तर्जुमा बोलो अदब से, कुरान मैंने की। अदब से बात किया, बहुत देर तक मैं मैं सब्र कुरान किया, का तुम तर्जुमा पूछ बोलने रहा नहीं हूँ दे रहे तुमको, हो मुझे। मैं खाली कुरान का तुम तर्जुमा पूछ रहा हूँ खाली तुम्हारे को। कुरान का तर्जुमा नहीं बोले, तुमने सारे वाकया से तफसील से समझाया, मैं समझा, भाई तुम तुमने जो क्या है उल्टी समझाया, पुल्टी लेकिन तुमको तफसीर समझ समझा में नहीं रहे, आई खुद। जैसा बरेलियां के दोनों जो एक है ना साथ, मैं मस्जिदों में तुम्हारे बारे समझाए में थे, बिल्कुल खामोशी तो से, वो तुम मेरे को खामोश होकर समझा रहे सुनता थे। हूँ। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ ना मैं। तुम बेवकूफ, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इसलिए समझ नहीं रहे, अच्छा समझाने ये भी नहीं बोलो, ये दे रहे तर्जुमा हो। क्या है बताओ, कुरान का तर्जुमा पढ़ो। तर्जुमा ही बोल रहा हूँ मैं, सुन क्या 2 है मिनट। पढ़ो? तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तर्जुमा के साथ मैं पूरा एग्जांपल देके समझाऊंगा जब समझ में। 2 मिनट नहीं दे रहा। अरे तुम यार 5 तुम मिनट मुफस्सिर बोले, मैं कुरान नहीं समझा। क्या तुम समझाने के वास्ते 5 मिनट बोले, मैं 2 मिनट नहीं बोल सकता क्या? नहीं बोल सकते तुम, 2 जो मिनट, कुरान का 2 मिनट तर्जुमा है बोलने, तो 2 मिनट बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई सुनना तो, काहे के लिए नहीं सुन रहा है? बीच में बोल रहा है, बोलने भी नहीं दे रहा है मुझे, मेरी बात में बीच में बोलो खलल डाल बोलो रहा है। सर, बोलो मैं फिर बोल एक रहा बार हूँ, मौका। जुमला शर्तिया होता है ना, अगर तुम करोगे, अगर तुम आओगे, मैं दावत खिलाऊंगा। अगर, जो अगर बोल के बोला जाता है ना, वो जुमला शर्तिया होता है। शर्तिया में दोनों एक साथ पाए जाना जरूरी है, दोनों में से एक अगर नहीं है, दूसरा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अगर तुम आओगे, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, तो आया नहीं, खाना नहीं खिलाया, यानी दोनों चीजें एक साथ पाई जाएगी, या दोनों चीजों का एक साथ इनकार होगा। तो अगर यहाँ इल्म लाउ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, इसके अंदर ये, अगर गायब जानते भलाई हासिल होती, गायब नहीं है, भलाई नहीं है, यानी हर गायब का इनकार, साथ में हर भलाई का भी इनकार, दोनों एक साथ लाजिम आएगा, ये अरबी ग्रामर के हिसाब से। और ये देवबंदी अकल नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, सिर्फ बात लंबी करते जा रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। गायब नहीं है का मतलब भलाई कुछ नहीं है नबी के पास, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ सारे गायब का इनकार है,
तो सारे भलाई का भी इनकार है। क्या तर्जुमा करा रहे, क्या पलटाया क्या तर्जुमा करे, ग्रामर से समझ लो। क्या घुमाया, क्या घुमा के जुमला डाला है? शर्तिया में इज़ा फातत क्या शर्तु घुमाया रे फातल भाई? मशरूत। क्या तफसीर है तुम्हारे बरेलियों बड़े की? वाह, अल्लामा मुफ्ती को भी मैंने वाह, इसमें लाजवाब कर वाह, दिया हूँ, वाह, तुम्हारे नारे मुफ्ती को भी तकबीर, जवाब नहीं मिली, इस नारे आयत का जवाब तकबीर, नहीं है, तुम्हारे नारे मुफ्ती के तकबीर। पास भी इसका जवाब अरे नहीं है। जाहिल, कुरान अब दूसरी पलटा के रख आयत दिया में पूरी। ये तुम जो कहाँ पढ़ा आयत रे पेश भाई, की किधर है, पढ़ा? अब मैं एक आयत पेश करता हूँ, सुनो, मैं आयत पेश करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पर हंसने वाला अस्तगफिरुल्लाह, एक नंबर कुरान का को तो काफिर पलटा के होता रख है। दिया। फिर ये आयत ये बताना चाह रही है कि नबी को इल्म गैब है, नबी इल्म गैब गैब है, जानते हैं बोल के। क्योंकि इस आयत में यहाँ वही पर जो जो आयत पेश करा अगर यहाँ मैं पर। गायब जानता, अगर मैं गायब जानता यानी अपनी तरफ से जानता, अल्लाह के बताए बगैर भी मैं जानता, यहाँ ये मुराद है। कुरान देखो, तहरीफ, कुरान में तहरीफ, कुरान में तहरीफ तुम कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से जानता कहाँ है इसमें बताओ? तहरीफ तुम कर रहे हो। मैं अपनी तरफ से जानता, हाँ, नबी कुरान, की तरफ झूठ, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो मेरी तरफ झूठ बोला उसका ठिकाना जहन्नुम में। हाँ, तो तुम सुनो, कुरान के तहरीफ कौन कर रहा है, सुनो। तौबा कर, बरेली से तौबा कर। हाँ सुनो, कुरान के तहरीफ कौन कर रहा है? कुरान में सूरह जिन के अंदर अल्लाह फरमाता है, मैं मेरी तरफ से जान लेता। यहाँ कहाँ है रे भाई? आप ये सुनो, कुरान में कहाँ है मैं मेरी तरफ से जान लेता? हाँ तो सुनो, दो आयत है, जब नहीं, ये दोनों तहरीफ आयत क्यों में करे पहले वो बताओ। दोनों आयत की कुरान तावील, पर तहरीफ क्यों करा मेरे भाई? बोल, तारीफ कौन कर रहा है वो तो मैं तुम बोलने अभी दोगे बोले ना, बोलूंगा। तुम तर्जुमा क्या कर दिया उसका? मैं मेरी तरफ से जान लेता होता। बात हो गई तुम्हारी। कहाँ है बताओ? तुम्हारे आला हजरत ने भी ऐसा तर्जुमा नहीं किया उसका। वो आला हजरत ने समझाया, आला हजरत भी नहीं करा ऐसा तर्जुमा। तुम इतने आगे निकल गए, आला हजरत से 10 कदम आगे निकल गए तुम तो। अच्छा सुनो, मैं बोलूं, अब बात मुकम्मल, तुम मुझे बोल लिए। भाई तौबा करो पहले, भाई तौबा कर, तौबा कर, तुम तौबा करो, तौबा करो पहले। इमरान साहब तुम तौबा करो। मेरा भाई ये मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा ग्रुपों में, रिकॉर्डिंग डालो, तुम्हारी जहालत का, तुम्हारी बेवकूफ देवबंदियों का सारी जहालत का पर्दाफाश हो जाएगा। कुरान में तहरीफ, तहरीफ, कुरान की तहरीफ देवबंदी कर रहा है। अब सुनो, अच्छा कुरान के अंदर वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिहि मन यशा। मेरे को दूसरे भी काम आए। इमरान हनफी जो साबित करने का था दलील दे दिया। आप सुनो, दलील दे। इमरान हनफी एक आयत को मानता यहूदी की तरह, दूसरी आयत को नहीं मानता। इमरान हनफी एक आयत को मानता है, दूसरी आयत का इनकार कर रहा है। नहीं पूरे मानते हो, चलो तो मान हम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आयत को मानते हैं। तू ये आयत को नहीं मानता ना, पहली बात दोनों आयत को मानते हैं। अब बात मुकम्मल सुनोगे भाइयों, ये जानते हम तो पूरी आयतों को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी आयत को मानते हैं तो पूरी आयत सुनो। पूरी आयत को मानते हैं, लेकिन आयत को उस तरह मानते हैं जिस तरह मेरे सहाबा माने, आयत को जिस तरह मानते हैं जिस तरह हमारे असलाफ मानते, लेकिन तहरीफ नहीं करते। मानते हैं, सुनो असलाफ क्या मानते थे। तहरीफ कुरान में तफसीर, तहरीफ नहीं कर देते। तफसीर करो तो मुफस्सिर कुरान है तो आप तफसीर कर सकते हैं, लेकिन तहरीफ नहीं कर सकते। आप तहरीफ कर दिए। कुरान में अल्लाह ताला के नबी का फरमा रहे, मैं ऐसा जान लेता होता मेरी तरफ से। ये कहाँ है? ये कहाँ है? वो बोलने पूछते हैं, वो बोलने नहीं देते। क्यों कर रहे हो? क्यों कुरान को बदल दे रहे? खुद बदलते नहीं। तुम बदल रहे हो, मैं नहीं बदल रहा हूँ। बदलते नहीं, कुरान बदल देते आप लोग। मैं बदल नहीं रहा हूँ, तुम बदल रहे हो। कुरान को बदल देते, फिर तुम बदल रहे हो। तुम पूरी आयत नहीं पढ़ने दे रहे हो, तुम पूरी आयत नहीं पढ़ रहे हो। पूरे कुरान में एक ही आयत है। नहीं जानता, गैब नहीं जानता। अल्लाह के नबी हमारे, मैं गैब जान लिया होता तो मैं बहुत से भलाइयों को जमा कर लेता, मुझे कोई बुराई नहीं पहुंची। मैं तो यही डरा और खुशखबरी देने वाला हूँ। नबी खुद फरमा रहे कि मैं नहीं जानता, खुशखबरी देने वाला हूँ। मैं गायब नहीं, अगर गायब जानता मुझे भलाई। दोनों एक साथ बोलते जाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग का माना क्या? रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? तुम बोलते हो, मैं खामोशी से सुनता हूँ ना। तुम एक ही कहाँ है बताओ? नहीं, तुमने तहरीफ क्यों किया पहले वो बताओ। वो बोलने दो ना, मैं तहरीफ किया या तुम तहरीफ किया, वो मुझे बोलने दोगे तब तो पता चलेगा। क्यों कर रहे? तुम अकेला बोलते जाओगे, लफसाजी करते जाओगे। तुम तहरीफ बोलो, चलो बोलो। कुरान में जहाँ है कि मैं गायब अगर जानता भलाई हासिल होती, एक जगह है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिहि मन यशा। ये सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला गायब की इत्तला हर किसी को नहीं देता, मगर अपने पसंदीदा रसूल को देता है। तो साबित हुआ कि पसंदीदा रसूल को गायब का इत्तला देता है। और दूसरी जगह सूरह जिन के अंदर पूरा बोलने भी नहीं देता। इतना नालायक है देवबंदी। जब मैं दोस्त मुकम्मल बात इसकी 5 मिनट सुनता हूँ, 1 मिनट भी मेरा सुनता नहीं।
मुकम्मल बात होगी तभी तो तुझे समझ में आ जाएगा, नालायक अच्छा कहीं इसे का। तहरीफ करा, चलो ठीक है मान लिया भाई, इन्हें कुरान में बात तहरीफ कर रहा तीन है, जगह पे, चलो तीनों ठीक है, आयत बस को इसे बात समझना, करना बेकार है। तीनों इन्हें कह आयत रहा है को कि वो समझा कुरान में दूं, तीन तहरीफ चार इसलिए कर आयत रहा मैं है कि समझा इन्हें जो दूं, है ना समझ में आ वो जाएगा। कुरान पढ़ देवबंदी लिया, एक नालायक। आयत दूसरी आयत तहरीफ कर रहा, मतलब तहरीफ कर देते क्या, जो तहरीफ मुंह नहीं, आए तो तू बोल कर रहा है रहे। हाँ तहरीफ, दूसरी आयत का तू इनकार बोला कर करे रहा भाई, है। अब मैंने अगर कहा तू तू कह रहा है बहुत नबी ज्यादा को कुरान गायब नहीं समझ है, तो गया। अल्लाह फरमाता है गायब का इत्तला मैं देता दुनिया हूँ। में कुरान किसको भी नहीं आती थी, आला हजरत को और तेरे को दोनों को चाहती थी। चल आला बता, हजरत ने इसलिए तुम्हारे देवबंदी के कुफर के घाट आला उतार हजरत भी दिए, तर्जुमा देवबंदी नहीं करा, काफिरों के, तहरीफ इतनी पूरी मुर्तद कर रहा, काफिरों के। आला हजरत को भी 10 कदम पीछे छोड़ दिया बेचारा। बेचारा देवबंदी इतना अकल नहीं है कि पूरे कुरान को बरेलियों समझ का सके। पुत्र अपनी बरेलियत को बचाने के लिए देखो कुरान को भी बरेलियत को, बदल देते हैं लोग। देवबंदियत को तुम बचा नहीं पा रहे हो। तुम बोलने पूरा अरे मुकम्मल बोलने, भाई, तुम्हारे 5, चलो 10 मिनट बोलो, अल्लाह मैं कुरान 10 में मिनट खुद सुनता कह हूँ। रहा है सारा का चलो मैं सारा गैब खामोश अल्लाह हूँ, ही 10 जानने मिनट वाला है। सुनता हूँ, मैं 5 मिनट बोलूंगा। चलो 10 मिनट बोलो, चलो। क्या 5 मिनट में मेरे भाई, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि सारा का सारा गैब सिर्फ अल्लाह को है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सारा का सारा गैब अल्लाह को है, अल्लाह के नबी भी फरमा दिए मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर फरमा दे मैं गैब नहीं जानता, तो नबी खुद फरमा दे मैं गैब नहीं जानता। और बरेली आला हजरत का भी तर्जुमा ये है कि मैं अगर गैब जान लेता होता तो बहुत सारे जो है भलाइयाँ कर लेता, लेकिन मैं जो है मैं तो खाली खुशखबरी देने वाला हूँ, अल्लाह से डराने वाला हूँ तुम्हारे को। जब आला हजरत का भी तर्जुमा यही बना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे कि नबी गैब नहीं जानता, तो अब जब बात आ गई सामने तब तुमको जो है तहरीफ करने की क्या जरूरत पेश आई। तो ये तहरीफ करने की उस वजह से जरूरत पेश आई क्योंकि अहमद रजा खान ने एक मसला गढ़ लिया है, अकीदा गढ़ लिया है, और गढ़ने के बाद इंसान जो है ना जो चाहे तहरीफ करते रहता, ठीक है, अब बनाते रहता। इसी तरह मुल्हिद लोग, खवारिज लोग एक अकीदा बना लेते, फिर उसकी आयत को हदीस को फिट करते अपने अकीदे पर, देखो हमारे अकीदे पे ये आयत है, देखो हमारी आयतों पे ये अकीदा है, ये तहरीफ करते रहते लोग, दोगले काम करते रहते। ऐसे तो तुम हर आयत, तुमको तो हर जना कोई आयत लाता कोई हदीस लाता अपने मजहब पर फिट करता। तो ये जो है ना तुम्हारी बरेलियत बिदती है, ये तो पहले से थे तुम लोग। हवारी भी वो बोलते थे, ज़कात के बारे में इनकार करे थे, तो उन्होंने भी यही कुरान की आयत को पेश कर दिए थे उन्होंने, जैसा बरेली पेश कर रहा आप, तो वही है ना भाई। तो इंशाल्लाह बरेली से बात करने का कोई मतलब नहीं है। वजह क्या है, एक नंबर का जाहिल होता है, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाए जाहिल को सलाम करके निकल जाओ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देवबंदी काफिरों की देखिए आदत, ये देवबंदी काफिर कह रहा है आला हजरत ने अकीदा गढ़ लिया है। आला हजरत ने नहीं गढ़ा, बल्कि कुरान जिनको आइडियल मॉडल बनाया साहबा इकराम आइडियल मॉडल। एक साहबी आके पूछते हैं या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का क्या अंजाम हो रहा है बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वालिद जन्नत में है। तो जन्नत में है करके बता देना, क्या जन्नत गायब नहीं है? तो हुजूर से गायब के बारे में पूछते हैं साहबा इकराम। इसका मतलब ये है साहबा का यही अकीदा है कि नबी गायब जानते हैं। ये खुद अगर डिक्शनरी भी देख लेता, डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि नबी वो होते हैं जो गायब बताते हैं। और एक आयत पेश कर रहा है, दूसरी आयत भी अगर मालूम हो तो देवबंदी ना रहे, क्योंकि ये यहूदियों की तरह एक आयत को मानते हैं दूसरी आयत को नहीं मानते। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में यहूदियों की मिसाल दिया, यहूदियों को तंबीह किया, अतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम एक आयत को मानते हो दूसरी आयत को इनकार करते हो? शर्म नहीं आती तुम यहूदियों को? इसी तरह देवबंदी काफिरों को भी एक आयत पेश किया, दूसरी आयत सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि कुरान को, सारे कुरान को मानने वाला मोमिन होता है। किसी एक आयत को मानने, अपनी तरफ से मनमानी तरीका से मानकर दूसरी आयत का इनकार करने वाला मोमिन नहीं होता। अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है वमा कानल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला गायब की इत्तला हर किसी को नहीं देता, वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला देता है। लेकिन बोलकर जो बात किया जाता है, अल्लाह किसी को नहीं देता लेकिन देता है। हर किसी को नहीं देता, अरे गरे को नहीं देता, लेकिन खास को देता है। खास में कौन है? यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, अल्लाह के पसंदीदा रसूलों को देता है। तो अल्लाह ताला देता है बोल रहा है, तो पसंदीदा रसूलों को दिया, तो पसंदीदा रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह पसंदीदा रसूल को गायब देता है। तो दूसरी जगह अल्लाह नबी से कहलवा रहा है
آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنی طرف سے غائب جانتا، اگر میں غائب جانتا میں بھلائیاں حاصل کر لیتا، اس کو میں سمجھا دیا بھلائیاں، اگر غائب کا انکار ہو رہا ہے تو بھلائی کا بھی انکار ہوگا۔ اس لیے یہاں مطلب یہ مراد لیا جائے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں جانتا، اللہ جو مجھے دیتا ہے وہی میں جانتا ہوں۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی، اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا تھا یہ نام بتاؤ، اللہ فرشتوں سے پوچھا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو جو دیتا ہے وہی ہم کو علم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں نبی سے کہلوا رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں جانتا، اللہ جو مجھے معلومات کرایا وہ میں جانتا ہوں۔ تو دوسری آیات میں ہے اللہ پسندیدہ رسول کو دیتا ہے، تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو اس کو کس لحاظ سے ماننا پڑے گا کہ یہاں ذاتی علوم کا انکار ہے۔ اور سورہ جن کے اندر اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں اللہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ تو غائب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پسندیدہ رسولوں کے بارے میں غائب کا اس بات فرمایا۔ تو قرآن میں ایک تو انکار ہے کچھ آیاتوں میں اور کچھ آیاتوں میں اس بات ہے۔ اب یہودیوں کی طرح ایک آیت کو مانے گا دوسری آیت کو انکار کرے گا، اور ہم کو الحمدللہ جب آیات ایک دوسرے کے جیسا ظاہری تضاد دکھ رہا ہے، حالانکہ کوئی آیت میں تضاد نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ قرآن اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں تو دکھ رہا ہے، ایک تو ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں غائب نہیں جانتا، پھر اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ اللہ پسندیدہ رسول کو غائب دیتا ہے، اللہ پسندیدہ رسولوں کو دیا ہے، پسندیدہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب بتانے میں بخیل نہیں، وما هو علی الغیب بضنین، میرے نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اب یہ آیات دیوبندی نہیں سمجھے گا، سمجھنے بھی نہیں دے گا، سمجھنا بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب بخیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو، بالکل جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، عارف بھائی بتائیے، جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اور سخی؟ جی اس کے پاس ہوئے گا تبھی سچی ہوئے گا۔ سخی ہونے کے لیے، بخیل ہونے کے لیے مال ہونا ضروری ہے نا؟ نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں، جو بخیل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں۔ تو بخیل اور سخی ہونے کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں غائب کے بارے میں بخیل نہیں، اس کا مطلب سخی ہے۔ سخی جس کے پاس مال ہو اور دیتا ہو اسے سخی کہتے ہیں، اور جس کے پاس مال ہو اور نہ دے اسے بخیل کہتے ہیں۔ تو یہ سب آیت سمجھنا نہیں چاہے گا، سمجھانے گئے تو سمجھنے بھی نہیں دے گا، سمجھانے بھی نہیں دے گا، وہ ڈائریکٹ صاحب بار بار تم تحریف کر رہے ہو، تحریف تو دیوبندی کر رہا ہے۔ دیوبندی ایک آیت کو انکار کر رہا، ایک آیت کو ماننے دعویٰ کر کے یہودیوں کی طرح مان رہا ہے، خارجیوں کی طرح دیوبندی مان رہا ہے، اور باقی آیاتوں کا انکار کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ان کو غائب کا انکار کرنے کی نوبت کب آئی؟ اس لیے ان کو غائب کا انکار کرنے کی نوبت آئی کیونکہ نزد کی حدیث میں فتنہ وہابیوں کے بارے میں، فتنہ خارجیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں بتا کے گئے۔ حدیث میں حدیث اگر پڑھے، ان کا حلیہ دیکھے، یہ کیسے ٹکلو بنے گھومتے ہیں، یہ کیسے پاجامہ اونچا پہنتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ یہودیوں سے ان کی دوستی ہے۔ حدیث میں بتایا گیا یہ کفار سے دوستی کریں گے، کفار سے محبت کریں گے، بت پرستوں سے ان کا تعلق ہوگا، اور مسلمانوں کو بلا وجہ مشرک کہے گا، حالانکہ سب سے بڑا مشرک یہ خود ہوگا۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے، ادب المفرد میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تمام احادیث کو اگر دیکھا جائے، دیوبندیوں کا پورا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے گئے، اور وہ سارا آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ہم پہچان پا رہے ہیں۔ دیوبندی اپنی پہچان چھپانے کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جب ثابت کر دے گا کہ علم غیب نہیں ہے
تو پھر یہ سب حدیثیں دکھا کر دیوبندی کہے گا کہ نبی کو کیا پتا تھا کہ ہم کیسے ہوں گے، ہمارے حلیہ کیسے ہوں گے، ایسا حلیہ والا دنیا میں آئے گا. یہ سب جھوٹ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. صرف اپنے پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے باطل فرقے کا پردہ ڈالنے کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں ہم دیوبندیوں کے علم غیب کا کیا عالم ہے. ایک عبداللہ راجپوت تھا دیوبندیوں کا، یہ حکایت اولیاء میں لکھا ہوا ہے. دیوبندیوں کے بڑے ایک رشید احمد گنگوہی کا ایک چیلا تھا، رشید احمد گنگوہی کا شاگرد عبداللہ راجپوت. تو عبداللہ راجپوت کا یہ عالم تھا کہ آس پاس میں جس کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا، کسی عورت کو حمل ہوتی، تو یہ عبداللہ راجپوت بتا دیتے تھے کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یعنی دیوبندیوں کو علم غیب ہے، دیوبندی ملاؤں کے علم غیب یہ دیوبندی خبیث لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے. یہ دیوبندی اپنے مولویوں کو یہ کہہ رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت کو تم نے خدا مان لیا، بولتے نہیں مگر تم مانتے ہو. معاذ اللہ تک ہم بولتے نہیں، لیکن زبردستی ہمیں منوایا جا رہا ہے. معاذ اللہ، ہم نے اعلیٰ حضرت کو ہم خدا نہیں مانتے، اللہ کی قسم، اور ساری دنیا گواہ ہے. اسی لیے دیوبندی بھی مانتے ہیں، تبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم دیوبندیوں کو کافر صرف اعلیٰ حضرت کی ترجمہ نہیں ماننے کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہتے، بلکہ دیوبندیوں کو ہم گستاخی کی وجہ سے کافر کہتے ہیں. دیوبندی نبی کے علم کی توہین کیا، گستاخی کیا. رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور قاسم نانوتوی ختم نبوت کا انکار کیا ہے. امت کو نبی سے بھی آگے بڑھا دیا، امت نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم کو پاگل اور جانور کی طرح لکھا ہے. اور اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے. اس وجہ سے ہم دیوبندی کو کافر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، یہ دیوبندیوں کی گمراہی ہے. بلا وجہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک بھی غلطی دیوبندی ثابت نہیں کر سکتا. بلا وجہ نہیں مانتے، یہ تو گمراہی ہے. لیکن گستاخی کی وجہ سے دیوبندی کافر ہے. اب میں دیوبندیوں کی اور ایک علم غیب کی بات دکھا رہا ہوں. دیوبندیوں کی کتاب میں علم غیب کے بارے میں ثبوت، دیوبندی معارف القرآن، دیوبندیوں کا قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر بھی علم غیب کو مانا گیا ہے. معارف القرآن میں بھی علم غیب ثابت ہے، اور ایک کتاب سے میں ثابت کر رہا ہوں. یہ کتاب دیوبندیوں کی، ایک منٹ میں نکال رہا ہوں. کتاب کا ہے ارشاد المفتیین. ارشاد المفتیین حمید اللہ خان، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. اور مکتبۃ الحسین، یہ کراچی سے چھپی ہے. اس کتاب میں میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. علم غیب دراصل غیر مشاہدات للناس کے جاننے کو کہتے ہیں. اب جو دیوبندی کہتے ہیں نا جو آتا ہی ہو وہ غائب نہیں رہتا. اب غائب کسے کہتے ہیں؟ جو عام انسان کے نظروں سے پوشیدہ ہے اس کو غائب کہتے ہیں. ارشاد المفتیین کتاب ہے، جلد اول ہے، پیج نمبر 161 ہے. یہ دیوبندی حمید اللہ، مولانا مفتی حمید اللہ صاحب دیوبندی، یہ دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اب اس میں لکھا گیا ہے علم غیب دراصل غیر مشاہدات للناس کے جاننے کو کہتے ہیں، جو عام آدمیوں کے علم میں نہ ہو. کیا ہے غائب؟ عارف بھائی بتائیے. جی جی، جو عام آدمی نہ جان سکے، دیکھ نہ سکے، اس کو غیب کہتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں علم غیب جو عام آدمی نہ جانتا ہو. خاص آدمی نبی جانتے ہیں، نبی جاننے کے بعد غائب نہیں رہا، یہ دھوکہ دیتا ہے دیوبندی. ان کے مفتی لکھے ہیں جو عام آدمیوں کے علم میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں علم غیب. اور علم غیب دو قسمیں ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی. اب سمجھ میں آیا؟ دیوبندی خود اعلیٰ حضرت پر جھوٹ بولا. اعلیٰ حضرت پر مطلق اور مقید کسے کہتے ہیں میں نے سمجھا دیا. آپ پھر اچھی طرح شروع سے سنیں، سمجھ میں آئے گا. علم مقید کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں، میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دیا. علم غیب ذاتی کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام اشیاء
मुगीबात हूँ या ज़ाहिर हूँ, उनको बगैर इलाम के जानना। यानी अल्लाह ताला किसी के मदद से नहीं जानता, बल्कि अल्लाह खुद अपनी ज़ात से, अल्लाह की सिफ़ात ख़ासा हैं, हर चीज़ के बारे में, हर ज़र्रा ज़र्रा के बारे में अल्लाह जानता है। ये सिफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए ख़ास है। और दूसरा अताई इल्म गैब, यह इबारत आपको स्क्रीन के ज़रिए से आपको दिख रहा है, आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देवबंदियों की किताब है। और मारिफुल कुरान का भी मैं इबारत पेश कर दूंगा, आप देख लीजिए देवबंदियों की किताब में। देवबंदियों उलमा की मुशाहिदात और देवबंदी उलमा की कश्फ व करामात, उसके ज़रिए से आप जान सकते हैं बहुत सारे गायब की चीज़ें अल्लाह ताला ने देवबंदी उलमा को भी दिया। बोल के देवबंदी उलमा कहते हैं, लिखे हैं किताब में, नबी के लिए नहीं मानते। कितनी नबी से इन खबीसों की दुश्मनी है, देखिए। अब इल्म गायब अताई वो है जो बतौर वही या कश्फ, वो करामत व इल्हाम के ज़रिया हो, जिन हजरात को इल्म गायब बज़रियाए वही हासिल होता है, वो हजरात अम्बिया इकराम हैं। और जिन हजरात को इल्म गायब बज़रियाए कश्फ व इल्हाम हासिल हो, वो हजरात औलिया इकराम हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इल्म अता हुआ। अब देखिए ये इल्म गायब मानने वाला को क्या कहा इसने, आला हजरत ने गढ़ लिया है। और यहाँ देवबंदी मौलवी खुद कह रहा है अहले सुन्नत का अकीदा है। इल्म गायब किसका अकीदा है? इल्म गायब मानना। और नबी के लिए भी इल्म गायब माना जा रहा है, वली के लिए भी इल्म गायब माना जा रहा है। लेकिन ये खबीस अपनी किताब भी नहीं पढ़ते। और जो बातिल होता है ना, हर पल बदलते रहता है। हर सदी में उनका 1400 साल तक उनका अकीदा जुड़ता ही नहीं। अब ये 100 साल पहले जो बुजुर्गों ने लिखा इनकी किताबों में, सिर्फ एक दो मसले में गलती किया और हमारे से हट गए, अहले सुन्नत से बगावत करके इन्होंने अलग फिरका बनाया, फिर वो हटते चले गए। रोज़ाना नए नए अकीदा ये लोग गढ़ते जा रहे। सहाबा इकराम, ऊँटनी गुम हो गई, हुजूर से ऊँटनी गुम हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछते, या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी कहाँ है? तो नबी तो ये नहीं फरमाया मुझे गायब नहीं है। जहाँ पर अल्लाह कहलवाया आए नबी कह दीजिए मैं गायब जानता तो बहुत भलाइयाँ हासिल होती। उस आयत साहबा पढ़ते थे, फिर भी साहबा आकर पूछ रहे हैं मेरी ऊँटनी कहाँ है, बता दीजिए। और दूसरा जो वाकया बताया इसके बारे में भी सुन लीजिए आरिफ भाई जी। बात यह है कि कोई अगर पूछे कि फला कोई चीज़ महंगा होने वाली है, वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं जान लूँ और वो चीज़ स्टॉक करके बाजार का सारा माल खरीद करके फिर महंगा दाम में बेच के पैसा कमाऊं। या गरीबों को मार कर, गरीबों के खून चूस कर, गरीबों को भूखा मार कर माल कमाना मकसद था। समझ में आया? और माल स्टॉक करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद फरमाया कि अगर कोई मुसलमानों को भूखा मारे, मुसलमानों को महंगा करने के लिए माल स्टॉक करे, उसको कोढ़ की बीमारी आएगी, उसको अल्लाह ताला कोढ़ की बीमारी अता फरमाएगा। इसलिए माल स्टॉक करना इस्लाम के खिलाफ है। और दूसरी बात, अगर दुनिया कमाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तरगीब देते तो लालच में बहुत सारे काफिर इस्लाम कबूल करते। लालच में लालच में इस्लाम कबूल करना यह इस्लाम के भी अजमत के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच नहीं दिया, ताकि सहाबा इकराम को अगर ऐसा देखे कि सहाबा इकराम को हुजूर ने बता दिया कि फलाना चीज़ महंगी हो जाएगी, तो सहाबा इकराम खरीद करके स्टॉक कर लिया और उससे मालदार हो गए, तो माल की लालच में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा काफिर। तो माल की लालच में अगर मुसलमान हो जाएगा तो बहुत सारे लोग मुसलमान होंगे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में जो इस्लाम कबूल करेंगे उन्हीं के इस्लाम कबूल होगा। इसलिए जो माल की मोहब्बत में कोई इस्लाम कबूल ना करे, ये बातें वहाँ शामिल हाल थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नहीं बताया और फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मैं जानता हूँ, मैं खुद से गायब नहीं जानता। और इसकी बहुत सारे तफासिर हैं। एक तफसीर का एक वाकया ही तफसीर नहीं होते, बहुत सारे तफासिर है कि जंग के मैदान में जब वहुद के जंग में नुकसान हुआ मुसलमानों का, तो कुफ्फार ने इल्ज़ाम लगाया, मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि नबी तो
غائب جاننے والے ہوتے ہیں. اگر نبی غائب جانتے تو یہاں ہم کو بلا لے جا کے نقصان کرایا، 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ کیوں ہوا؟ یہ نبی کی غلطی کی وجہ سے ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا الزام منافقین نے لگایا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے جتنا دیتا ہے میں اتنا جانتا ہوں. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے غیوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بہت سارے بھلائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ بیوقوف دیوبندی اتنا بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر دونوں چیزوں کا انکار ہو رہا ہے. اور اگر تم کہہ رہے ہو نبی کو کوئی بھلائی نہیں تھی تو یہ کتنا بڑا کفر ہے. اگر کوئی غائب نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی خوبی بھی نہیں ہے، کوئی بھلائی بھی نہیں ہے. حالانکہ بھلائی بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام سنی بھائیوں کو سمجھنے کی اور دیوبندی کافروں کی مکر و فریب سے، ان کی مکاری سے، ان کی کفریات اور گستاخی سے تمام سنیوں کے ایمان عقائد کو اللہ حفاظت فرمائے. میرے سنی بھائی ہمارے آڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. جزاک اللہ.